आंध्र प्रदेश, व्हाट इज एपी ने फुल फॉर्म थोड़ी पूछा है, लाइक 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9. Common difference is same for all terms, for two consecutive terms. So in this situation, basic formulas to calculate Tn. Tn means nth term. Your formula is a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is common difference, and n means number of terms. Okay. To get the sum of n terms of AP, your formula is n by 2, 2a plus n minus 1 into d, or in the form of n by 2 a plus l, where a is the first term and l is the last term. S लगा है, S means nth term. तो क्वेश्चन में देखिए आपको 25th टर्म चाहिए. Your answer is okay, good. So do it fast. अभी तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. शर्मा जी कह रहे हैं 25. अलग अलग कैसे आ रहा है? 49. Sharma ji, most of the student getting answer is 49. Check your calculation again. प्योर मतलब क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 5. सो थर्ड टर्म का मीनिंग हुआ a plus 2d. दिस इज इक्वल टू 5. एंड सेवेंथ टर्म इट इज a plus 6d. It's a 13. Question want to know a plus 25 टर्म चाहिए. इट मीन्स a plus 24d का वैल्यू रिक्वायर्ड है. सो इजिली यहां से a और d दोनों मिल रहा है. क्लियर? यस, द करेक्ट आंसर इज 49. बेटा आएगा आज की डेट में? आ गया है. अच्छा, फिर कर क्या रहे हो? अच्छा, नाउ consider the following AP: 5, 8, 11, and the nth term is 50. So in this series, first term is 5. Common ratio, it means D is 3. Find SN. Do it fast. तो your results कितना बेटा है? 6. अभी NH टर्म का फॉर्मूला बताया था, उसी से तो निकलेगा. यस, करेक्ट आंसर. योर आंसर इज रॉन्ग बेटा. देखिए, your formula to calculate sum of n terms is n by 2 a plus l or 2a plus n minus 1 into d.
सो अगर फर्स्ट टर्म, और हमने ये क्यों यूज किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है, एन चाहिए आप, टू गेट द एन योर फॉर्मूला इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. nth term is 50, first term is 5, n minus 1 into 3. यहां से आपको n मिल जाएगा. So your n value is 16. 16. Okay. So 16 by 2, 5 plus 50. It means 8 times of 55. So your answer is 440. This is the correct answer. क्या? तो फॉर्मूला पता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into this is the average. Sir, actually you divided this by n by 2. We should not divide it by n because number of terms into first term plus last term is the These right? both formula are used to calculate the summation n. इस फॉर्मूले के थ्रू किया है. ओके, सो इस फॉर्मूले के थ्रू चलते हैं. Wait, n by 2 it means 16 by 2. Clear? Twice of 8 is 10 plus n minus 1 into d. So n is 16. So it's a 15 into, yes, 3. In this situation also get same value. It's a 440. Okay? हाँ बेटा, अब आपको लास्ट टर्म अगर पता है तो इजीली आप इसको यूज कर दीजिए, अदरवाइज इस पर जाएंगे जो भी सुटेबल है. क्लियर टू एवरीवन? सर वो n क्या है? एल लास्ट टर्म बेटा, तुम तो 12th तक मैथ्स पढ़ के आए हो, तुम ही बोले थे. Okay, if the sum of first 13 terms of an arithmetic progression is equal to first 21 terms, then what is the sum of first 34 terms? कैसे हो सकता है ये तुम्हें उससे नहीं पूछना है. हाँ, First 13 terms का sum equal है. Like 21 क्या? Sum multiplication. 21 terms. Sum 21 terms equal कैसे हो सकता है? आपको अरे sum 21 21st term के equal है. ये क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो कि तुम ही बोलती रहोगी. क्वेश्चन में क्लियरली कहा है सम ऑफ फर्स्ट 13 terms of arithmetic progression is equal to the, वही है भावना है, उसको आप इससे लिख लीजिए सम ऑफ फर्स्ट 21 terms. ओके, फर्स्ट 21 का क्या होगा, सम ही तो होगा. तो वही तो मैं बता रहा हूँ, उसको क्वेश्चन में कहा है उसने. ठीक है, सो जल्दी से करिए. नहीं नहीं, डिस्कशन मत करिए, अपने आप से करिए. Not unique. How to get this answer? The correct answer for this question is 0. इस बार भाई तुम्हारा फ्रेम काम आ गया. कैसे आएगा देखिए. Question says sum of first 13 terms. So according to this formula, n by 2 twice a n minus 1 into d. In this situation last term is not given, so यही formula use करेंगे.
So 13 terms का sum, it means 13 by 2 twice of A plus 13, it means 12D. Okay, that is equal to 21 by 2 twice of A plus 20D. So 2 और 2 तो कैंसल हो गया, तो यहां से इजीली A और D का रिलेशन मिल जाएगा ना। पहले रिलेशन कैलकुलेट करो, जल्दी से चेक करो। यहां से जो रिलेशन मिलना चाहिए, अगर आपने करेक्ट किया है, A प्लस 33D, 2A प्लस 33D इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक करिए आता है कि नहीं। बेटा कब तक कैलकुलेट करोगे, नहीं आया? क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? क्या आया? 16A इज इक्वल टू 0, है ना? 8 का टेबल आता है, 8 से डिवाइड कर दो, तो मिल गया। अभी आया 16A plus 264D is equal to 0. So divide by 8 in both the sides, then you get 2A plus 33D is equal to 0. In this question, required sum for 34, first 34 terms. So it's a 34 by 2 twice A plus 33D, because this part is 0, so complete result is 0. Okay? हाँ? AP पूरा नहीं 0 था, सम 0 था। कैसे हो सकता है बेटा? -2, -1, 0, 1, 2, these all terms are in AP or not? Huh? So sum of all terms is 0 or not? क्या बट? बेटा वो झंझट मैं क्यों पालूं कि कौन से टर्म्स हैं वो? इतना इतना डीप मत घुसो, बहुत कुछ पढ़ना है, डिस्टर्ब हो जाओगी। मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। So next question is, sum of first 17 terms of an arithmetic progression is equal to 2/3 of the sum of first 25 terms of arithmetic progression. As it is same type question. So find the ratio of fifth term to the seventh term of arithmetic progression. Easy question है। So fifth term का meaning हो गया A plus 4D and seventh term means A plus 6D. इनका रेशियो चाहिए। सो इनिशियल स्टेटमेंट के थ्रू ए और डी का रिलेशन मिल जाता है, तो सारी वैल्यूज या तो ए के फॉर्म में या डी के फॉर्म में रख के इजीली कैंसिल कर सकते हैं रेस्ट पार्ट को। जल्दी से करिए।
Options are given. Anyone got the result? क्या हुआ बेटा? सेम क्वेश्चन में इतना टाइम? So according to your equation 2a, ये क्या आ रहा है सर? So option 3, 98 is to 99. Wrong. बहुत सारी मेहनत करी है आपने. हो सकता है भाई यही आ रहा हो. है 9:13 आ रहा है. ये तो ऑप्शन में ही नहीं है. आउट ऑफ द रेंज हो गया क्या? चलो फिर डिस्कस कर लें. इतनी देर में तुम लोग कर ही रहे हो. प्रोसेस बहुत फास्ट है तुम लोगों का. सो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 17 टर्म्स, इट मींस 17/2 twice a plus 16d is equal to sum of 2/3 of sum of what? 25 terms. It means 25/2 2a plus 24d. यही आ रहा है ना? सो 2 और 2 तो कैंसल हो गया. नाउ 3 को अगर इधर भेज देते हैं, है ना, सो इट्स ऑफ 51 2a plus 16d 50 2a plus 24d. अब इसमें देखिए इजी बनाने के लिए अगर 2 को बाहर निकालने तो 100 हो जाएगा, अंदर ये हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर तो भाई ऐसे क्या ऐसा ही है. यहाँ तक सेम था ना. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट्स 102a प्लस 16 1 जा 16 816d is equal to 100a plus 1200d. So through this twice of a, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया? 384. यस. सो a का वैल्यू हो गया 192. यही तो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, वही है. सो 192 plus 4 it means 196 and 192 plus 6 it means 198. और इसको जब आप सॉल्व कर देंगे सो योर आंसर इज 98:90. क्लियर? गॉट इट? क्या मतलब? D का वैल्यू तो 1 आया और D का वैल्यू 2 आया. ए का वैल्यू 1 डी का वैल्यू 2, ये क्या होता है? मैंने रिलेशन फाइंड किया D और D. तुम ठीक करो रिलेशन पहले अपने, है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एज इट इज सेम क्वेश्चन है. If the square of the 7th term of an arithmetic progression with positive common difference equal to the product of 3rd and 17th term, साफ साफ क्लियर है? Then ratio of first term to the common difference, it means A और D के बीच का relation required है only with the help of this given statement.
अब किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इजीली निकाल सकते हैं। मे बी any problem? Yes, correct answer is 2:3. I think concept is clear. Or any doubt? है? तुमने नहीं किया अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी 2 स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसको किसको प्रॉब्लम है अभी? बेटा 7th टर्म, it means a plus 6d, and product of what? 3rd and 17th term, it means a plus 2d and a plus 16d, and square of this term, both are equal. यही given है ना? The square of 7th term of an arithmetic progression with positive common difference equal to the product of this and this. So बस इसको solve कर दो भाई. So it's a square plus 36d square plus 12ad is equal to a square plus 2ad plus 16ad plus 32d square. Clear? ये क्लियर हो गया? तो यहां से बेटा ये तो कैंसिल हो गया. It means 36 and 32, it means 4d square, and 16 plus 2 18, और 18 minus 12 it means 6ad. So ये भी कैंसिल हो गया. It means a upon d is equal to 4 upon 6. It means it's a 2 upon 3. तो बहुत सिंपल था ये तो. ना बहुत खुश होगा ऐसा क्या? अच्छा अच्छा इसका होगा. चलिए अब ये क्वेश्चन फिलहाल आपके टेस्ट में है राइट नाउ. ये हो जाए तब खुश होने की बात है, बिकॉज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कैट एग्जामिनेशन, जो टारगेट है अपना. कंसीडर द सेट. The set is 1, 2, 3 up to 100. How many arithmetic progression can be formed from the elements of S that start with 1 and end with 100? ये तो compulsion है. Start with 1, end with 100, and have at least 3 elements.
3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 चाहिए। So you have 2 minutes to solve this question. Your time start now. हिंट में दे सकता हूं कि क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड है कॉमन डिफरेंस के ऊपर। कितनी वैल्यूज कॉमन डिफरेंस की पॉसिबल हो सकती हैं, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ प्रोग्रेशंस आएंगे। मैंने अंदर की फीलिंग रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं कहा, आप अभी ट्राई करिए। ओके, इसको करिए और फिर खूब खुश होइए जल्दी से, विद इन टाइम इंटरवल। अपना अपना हालात बदल गए हैं। 6 लॉक करें। रामानुज, अभिजीत तो 9 कह रहा है, 9 तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू है। रामानुज बेटा, so the correct answer for this question, time is over, so 5। तो मे भी कुछ लोगों का तुक्का लगा हो, अलग बात है, बट काम तो कर गया। कुछ लोगों का आंसर सही है। 6 कैसे आ रहा था? The common difference item. We can make the arithmetic division by 5. 25, 10, 20, 50, 150, 100. बेटा 1 is the fixed value, 100 is the fixed value. Condition is given, start with 1 and end with 100. अब बेस बीच में कितनी नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, और मिनिमम 3 होनी चाहिए। Question says at least 3 elements in this series, at least. So nth term formula is a plus n minus 1 into d. This term is fixed, so 100. First term is fixed, so n minus 1 into d. So in this situation, your n minus 1 into d, that is equal to 99. Clear? So how many possible values with this 99? See, this 99 is 9 into 11, or this one is 3 square into 11. So it means possible values for D are 1, 3, 9, 11 and 33. Only these values for D are possible. So because D का इतना value possible है 5, so 5 progression भी possible. Clear? लास्ट हम लोग 99 नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, थ्रू दिस अभी हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स पर बात करेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये जब ये वैल्यू ऐसी है
सो इसमें आपके पास दिस इज द सम वैल्यू ऑफ n-1, सपोज दिस इज a एंड दिस वन इज d। सो ये तो अपने नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम 3 रहेंगे ही रहेंगे। इस d की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है? सो आपको ये क्लियर है कि ये a 1 नहीं हो सकता, बिकॉज इसका वैल्यू आपको बोला है एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होंगे। सो अगर 3 होंगे, सो 3 - 1 2, तो एटलीस्ट इसका वैल्यू होना चाहिए। सो ये तो 1 हो ही नहीं सकता। अगर 1 होता, सो इन दैट सिचुएशन डी का एक और वैल्यू 99 भी पॉसिबल हो जाता, तो वो तो है ही नहीं। तो वो हमने सीन अलग कर दिया। अब मैंने देखा कि उसके अलावा क्या क्या हो सकता है। सो डी की पॉसिबल, डी तो 1 हो सकता है ना, 1 2 3 4 अप टू 100, ये भी तो एक सीरीज है। तो पहली वैल्यू तो डी की 1 पॉसिबल है। इसके बाद इसके फैक्टर्स में 3 आ रहा है, इसके फैक्टर्स देख रहे हैं। सो 3 इसका फैक्टर है, 3 स्क्वायर 9 भी इसका फैक्टर है, 11 भी इसका फैक्टर है, और 11 3 33 भी इसका फैक्टर है। क्लियर? ओके, सो टोटल 9 प्रोग्रेशंस आर पॉसिबल। क्लियर? सॉरी 5, वो मैं उस बच्चे ने 9 बोला, उसकी भावनाओं में बह गया। ओके, तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे भी आएंगे, और थमेटिक में अभी बहुत कुछ बचा है, उसमें काफी कुछ आएगा। खुश नहीं हो पाओगे इतना, है क्या हुआ? It would like to be for like